मैं आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। और आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, सबत का दिन है। और मैं आप सबको बधाई देती हूँ सबत के दिन के लिए। और चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को देखते रहिए और दूसरे लोगों को साथ जो है इसको आप शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि आपको हर मैसेज जो मैं यहाँ से पेश करूँगी वो आप लोगों को मिल सकेगा। I'm happy that I can be here in my on my channel, YouTube channel that I have, Rebecca's Witness. And I'm so thrilled that once again I can be present before you. I know God is going to help me out. And this is again a new message for my viewers. And I want to thank my viewers for picking, listening to my listening to my message, and then sharing it with your loved ones. Continue to do the same so that you will be getting the next message that I'm going to put. God bless you, and let's pray before we begin. Our Father in heaven, once again, we are so privileged that we can be together here with my Zoom channel and with my viewers who are going to listen to it, watch it, and share with the others. Bless each of the members who will be listening to this message. Bless their families as there is anyone sick. Heal them and bring them back to normal health. We commit all of us into your care. You have given us the task of sharing the message, and so I'm trying to do it with your help, without the help of Holy Spirit. I cannot do anything, God. I know you always help me and help me to speak the right words. Fill me with your Holy Spirit. Forgive my sins and shortcomings. Accept us as I am, for I ask this. Few blessings in Jesus' name. Amen. बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ। बड़ा अच्छा है कि हम जब परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, it's very good that we must spend time with God, and our time with God is very precious because God has chosen us and He loves us, and so we need to love God back. So when we look at here, God is always guiding us. Today's message is coming to us from Second Chronicles chapter 10 and 11. And there is a king by the name King Rehoboam. And Rehoboam happens to be the son of King Solomon, who happens to be the wisest of the wise person who ever has lived in this world. He asked God for wisdom, and God gave him not only wisdom, but also fame, wealth, and everything. So he was a very intelligent, wise man. But when you look at the life of his son, it's just the opposite of his father. So आज हम रहबाम के बारे में सीखेंगे, जो कि राजा सोलोमन का बेटा था, और उसको जो है सोलोमन की गद्दी पे बैठने का उसको मौका मिला। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो था रेहोबाम, हम इसको दूसरे इतिहास उसकी 10वां अध्याय और 11वें अध्याय में और पार्टली 12वें अध्याय में भी हम देखेंगे कि किस टाइप का राजा ये यरोबाम था, रेहोबाम था, किस टाइप का बेटा था सोलोमन का. What kind of son he was. We are going to study that today. And I'm sure you will know many things about this man if you have not heard the name of King Solomon. So when we look at here, रेहबाम का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो आप इसको देखेंगे और जानेंगे कि ये जो सोलोमन का जो बेटा है वो किस टाइप का बेटा था और किस टाइप का उसने अपना राज्य को चलाया. यहाँ पे हम देख रहे हैं हिपोक्रेसी ऑफ किंग रेहबाम. ओके, कपटपन इसमें था, क्योंकि दिखाता कुछ और था, करता कुछ और था. जो अगुवे होते हैं, ये सच तरीके से असलियत में ये अगुओं का काम इसने सही तरीके से नहीं किया. When we look at the leadership of King Rehoboam and the hypocrisy of Rehoboam, we know that he was not like his father, and he tried to put up as if he's going to do things which are right, but then he was trying to be hypocrite. His style of ruling was hypocrisy, and therefore we see him, what he said to the people and what he did was totally different. जो इसने लोगों से कहा
और जो उसके लोगों के साथ किया वो दोनों चीजें एकदम अलग थी। ये रहबाम जो था, इसको मौका मिला और इसने जो है ये दिखाया शुरू में कि बहुत ही ज्यादा ये अक्लमंद राजा है। हम यहाँ देखते हैं कि इसने जो है सबसे पहले बुजुर्गों को बुलाया। ओके, इसने जो है जब बुजुर्गों को बुला के पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये बुजुर्ग लोग उनके पास आते हैं तो इससे कहने लगे, दूसरा इतिहास 10वें अध्याय की 4थी आयत में हम देखेंगे, तेरे पिता ने हम लोगों पर भारी जुआ रखा था, इसलिए अब तो अपने पिता की कठिन सेवा को और उस पर भारी जुए को जिसे उसने हम पे डाल रखा है उसको हल्का कर। King Solomon, towards the last days of his life, the ruling kingdom, he had become very harsh with the people. So he was ruling them very harshly. And so here the people of this kingdom were very much disturbed. And King Rehoboam comes there and he asks for the suggestion from the elders. So he was trying to show that he is very wise, like his father. उसने यहाँ पे अकलमंदी दिखाई, बुजुर्गों को बुला के और उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, और उन्होंने बताया कि सोलोमन ने किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया। वो चाहते हैं कि वो उसके जैसा उसके साथ व्यवहार ना करें, बल्कि उसको हल्केपन से उसके साथ डील करें। हार्शली क्रूर बिहेवियर नहीं चाहिए उन्हें। और ये जो है ये अपनी एडवाइस देके चले जाते हैं। Rehoboam ने कहा, he told them, okay, you come after 3 days and let me think what I am going to do. Now, after talking to the elders, he called the younger people, the people who had played with him, his own friends. उसने नौजवानों को बुलाया, जिन नौजवानों ने इसके साथ बचपन से दोस्ती का साथ निभाया था, उनको ये बुलाता है और उनसे भी वही एडवाइस लेता है। हम देखते हैं कि इसने बुजुर्गों से एडवाइस लिया और फिर इसने अपने दोस्तों से भी एडवाइस लिया, और जब इसने देखा कि ये इसने बोला अच्छा ठीक है, 7वें आयत में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं देखूंगी कि उन्होंने उसको ये उत्तर दिया, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे तो वह सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने सम्मति का जो बूढ़ों ने उसकी दी थी छोड़ दिया और जवानों से सम्मति ली और उससे संग खड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उसने उनसे पूछा, मैं प्रजा के लोगों के कैसा उत्तर दूं, इसमें तुम क्या संपत्ति देते हो। अब जब बुजुर्गों को इन्होंने बोला 3 दिन के बाद आना, he told them come after 3 days, and then we see him that he also asked the same questions to his own friends. Now his own friends, the kind of reply that they giving him was not appropriate. जब इसने बुजुर्गों को बोला कि 3 दिन के बाद तुम आना, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 क्रॉनिकल्स 10:4, तेरे पिता ने हम लोगों पे भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए आपको अपने पिता की कठिन सेवा कर उस भारी जुए को जिस पर उसने हम पर डाल रखा था कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। This was the advice of the elders. They said, you don't be very harsh like your father and you treat us like your good people. Now here we see, so he is trying to show he is with the old people. वो दिखा रहा है कि वो बुजुर्गों के साथ है, लेकिन उसे फिर नौजवानों से सलाह लेने की क्या जरूरत पड़ी। और यहाँ पे जो है यहाँ लिखा हुआ है कि जो जवानों ने उसके संग बड़े हुए थे उसको उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा, मेरे पिता हमारा जुआ भारी किया परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे ये कहना, मेरी छुंगलियां मेरे पिता की कटी से मोटी है, मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा तो उसे मैं और भारी करूंगा।
Now he is trying to be harsh with them. Now, listening to the young generation, now they know he is a king because they have all played with Rehoboam. ये जो नौजवान थे ये बचपन से रहबाम के साथ थे, तो रहबाम ने जो है सलाह तो ली, बुजुर्गों से भी ली, लेकिन उनकी बात को उसने माना नहीं। उसने उनकी बातों को ना मान के जो उसके दोस्त थे उनकी बातों को उसने मानने का विचार किया। उसने कहा ये मैं ऐसा ही करूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके का ये राजा था। क्या इसके पास अपनी बुद्धि नहीं थी? A foolish leader acts with cruelty and without love towards others. ये वो तरीके का अगुवा था, वो तरीके का राजा था जिसको कहना चाहिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। और जब अगुवे लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते तो उनके मन में दूसरों के लिए कभी प्यार नहीं हो सकता। ये जो राजा था, राजा रेहोबाम, ये इसने भी वही किया, दिखाया कि वो प्यार करता है। जैसे मैं छल कपट कपट जो इसके मन में था, ये लोगों को दिखा रहा था कि वो प्यार करता, लेकिन अंदर से इसका मन जो कपटी था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका मन में बुजुर्गों के लिए कोई प्यार नहीं था, वो अपनी मर्जी करना मांग रहा था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब सुलेमान राजा जब किंग बना, and Solomon became king, God asked him, what do you want? And he said, I want wisdom. Very wisely Solomon had asked for wisdom. बड़ी बुद्धिमता के साथ सोलोमन ने जो राजा बना, उसने जो है परमेश्वर से बुद्धि मांगी ताकि अपने राज्य को वो चला सके। यहाँ पे रहबाम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और जब उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा, उसने ये दिखाया कि मैं बुजुर्गों की भी सलाह सुन रहा हूँ और मैं नौजवानों की भी सुन रहा हूँ, लेकिन मैं अपने मन की बात करूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं जब अपने मन की बात हम करते हैं तो हम परमेश्वर को एक तरफ रख देते हैं, और रेहबाम ने भी ऐसा ही किया। As a leader, the king Rehoboam failed to seek God's will and pursued his own. Okay, अपनी मन मर्जी करने लगा। जब अगुवे लोग, जो कलीसिया के लोग हैं, जो अपनी मर्जी करते हैं, वो अपनी कलीसिया के लोगों की नहीं सुनते हैं, तो उनके अंदर दिखता है कि उनके अंदर घमंड आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा इतिहास 12 की 1 आयत में, परंतु जब रहोबाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ इसराइल के यहोवा ने व्यवस्था को त्याग दिया। यहोवा की व्यवस्था को त्यागना, हम देखते हैं कि जो वर्ड है घमंड, द वर्ड प्राउड और प्राइड, we see Satan had the same pride when he was in heaven, and therefore as a result of his pride God gave him chance to repent, but he did not repent, and therefore he was thrown down to this earth. शैतान को घमंड जो था उसके मन में जब वो स्वर्ग में था, उस घमंड की वजह से उसे आसमान से 1/3 फरिश्तों के साथ नीचे गिरा दिया गया। जब हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं तो हमारे मन में घमंड आ जाता है। उसने ये सोचा कि मैंने सेना बहुत तैयार कर दी है, मेरे को जो है, मैंने अपने जो राज्य है, अपने जो शहर है, नगर है, उनको मैंने बहुत मजबूत कर लिया, मेरे पास बहुत अच्छी आर्मी है और मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की उसे जरूरत, उसने सोचा जरूरत ही नहीं है परमेश्वर की, उसने परमेश्वर को त्याग दिया। जब हम परमेश्वर को त्यागते हैं, he forsook the Lord. It came to pass when Rehoboam had established the kingdom and had strengthened himself, he forsook the law of the Lord and all Israel with him. उसने अपने राज्य की भी परवाह नहीं की। उसने कहा मैंने अपने राज्य के जितने भी नगर है सबको मैंने मजबूत कर लिया, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे ईश्वर की भी जरूरत नहीं है। जब उसने कहा मैंने अपने राज्य को स्थिर कर लिया है, he said I have made strengthened my kingdom, that I was the result of his pride. जो काम मैंने स्थिर कर लिया है, जो मैं शब्द था,
वो उसके अंदर घमंड पैदा कर रहा था, और इसलिए ये अगवा जो था, जो राज्य को जिसको अच्छी तरह देखना था, लोगों को इसको प्यार दिखाना था अगवे के तौर पे, इसने वो नहीं दिखाया, और इसलिए ये परमेश्वर से दूर होता चला गया। यहाँ पे देखते हैं कि राज्य उसका दृढ़ हो गया, आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। अगर हम व्यवस्था को त्याग रहे तो हम जा रहे हैं शैतान की ओर, शैतान के रास्तों पे चल रहे हैं, और इसने जो है अपने जो राज्य था उसको इसने बुत परस्ती की ओर ले गया, और वहां पे जो था पूजा जो थी इनकी होने लगी, बुत परस्ती में ये लोग चलते चले गए, देवी देवताओं को ये लोग मानते चले गए, और इन्होंने परमेश्वर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ये राजा ऐसा राजा था जो जिसको परमेश्वर के पास लाने के बजाय परमेश्वर से दूर किया इसने। और जब इसने परमेश्वर को दूर किया, जब इसने बताया कि he said I will make things hard for you, when he told his kingdom people who were old people, I am going to make things hard for you, and I will let the scorpions bite you. That means life is going to be worse than what it was during my father's time. That is when, these people got the chance. One main result of Rehoboam's kingdom was he led the kingdom divided. He allowed. And so people were very upset. And they called on Jeroboam, who had already run away. And then when he comes to know Rehoboam is there and he is not listening to the people, he's away from there. He was also a ruler who led the people into idolatry. And therefore, the kingdom of Israel was divided into two. It is because of Rehoboam. Rehoboam के द्वारा उसका जो राज्य था दो में बढ़ गया। इसके पास दो ही राज्य आए, और 10 राज्य जो है वो यरोबाम के पास पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर जो है वो ऐसे चीजों से हमें वो करता है, सजा देता है कि हम उसी में गिरते चले जाते हैं, हम पाप में पड़ते चले जाते हैं। जब ये यहूदा की किंगडम, इजराइल की किंगडम डिवाइड हो जाती है, तो फिर जो है रहबाम जो है इसके पास दो राज्य रह जाते हैं, यहूदा और बिन्यामीन, और बाकी राज्य जो है इजराइल के वो जरोबाम के पास चले जाते हैं। तो राजा रहबाम, he was responsible for dividing his kingdom. He was responsible for his behavior. Because of his behavior with the people, by becoming harsh and treating them harshly, the kingdom was divided into two. उसके क्रूर व्यवहार के द्वारा वो राज्य जो था वो क्या हो जाता है, वो तितर बितर हो जाता है, दो हिस्सों में वो बट जाता है। ये बड़ी सैड सिचुएशन थी, दैट राजा की जो राज्य है, जो उसके पास 12 ट्राइब थी और 12 में से सिर्फ उसके पास 2 बच जाते हैं। ये जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हमारे साथ यही होता है। Because they had been unfaithful to the Lord, Shishak, king of Egypt, attacked Jerusalem in the 5th year of King Rehoboam. जैसे कि मैंने बोला, रेहबाम कह रहा है कि मैंने अपने राज्य को स्थिर कर लिया है। 4 साल बड़े अच्छी तरह से गुजर जाते हैं, और इसने जो बुत परस्ती जो है वहां पे फैला दी अपने राज्य में, और इसका राज्य भी तितर बितर हो जाता है और डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जब परमेश्वर इसको देखता है तो इसको जो है सजा के तौर पे मिस्र का राजा फिरौन जो था शीशक, उसको यहाँ पे भेजता है। वो इस राज्य पे, यहूदा के राज्य पे और यरूशलेम तक वो पहुंच जाता है। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया, they were not faithful to God, so therefore in the 5th year of his reign, 5वां साल जा उसके राज का, राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पे चढ़ाई की। That means king of Egypt was very strong, having 1200 chariots and 60,000
the army of soldiers, and he came with such large army to attack Jerusalem. और जो लोग उसके संग मिस्र से आए, ओके, अर्थात लूबी, सुकुरिया, कुशी, all these people, along with 60,000, there were other tribal people who came with him. They were uncountable. So you can imagine what a great attack Rehoboam had to face. और उसने यहूदा के गढ़वालों नगर को ले लिया और यरूशलेम तक आया। जो भी किनारे पे जितने नगर थे यरूशलेम के, उसने सारे जो है कैप्चर कर लिए, सबको ले गया, वो अपने कब्जे में ले लिया। और वो यहाँ तक यरूशलेम तक आया जहाँ पे कि उसका मंदिर था। अब यहाँ देखते हैं कि वो मंदिर में भी जाता है और उसके रेहबाम के पैलेस महल में भी जाता है। और सोने चांदी के जितने आभूषण थे, ऑल ज्वेलरी एंड ऑल दोस थिंग्स, गुड थिंग्स दैट ही हैड डन, he had taken during the time from his father, and those golden shields, जो कि जब राजा सोलोमन जब अपने महल से मंदिर जाता था तो वो शील्ड जो थी, सोने के जो शील्ड थे, वो वहां पे उसके सैनिक लेके खड़े होते थे। और जब मंदिर से वापस आता था तो वो वहां पे खड़े मिलेंगे, और जब मंदिर से आके घर महल में आ जाता था तो उनको फिर सुरक्षित रखा जाता था। वो सोने की शील्ड जो है, जो कि बहुत ही ज्यादा आज के रेट में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कॉस्टली, महंगी थी, और शायद किलोग्राम के हिसाब से और शक्ल में अगर देखा जाए तो एक एक शील्ड जो है 3 से 4 किलोग्राम की थी, जो कि 300 जो शील्ड उन्होंने बना रखी थी। और ये शेशक यरूशलेम तक आ गया। यहाँ देखते हैं, so Shashak, king of Egypt, came up against Jerusalem and took away the treasures of the house of the Lord and the treasures of the king's house. He took all that and he carried away all the shields of gold which Solomon had made. Solomon की मेहनत, वो सोने की मोहरें जो बना रखी थी, जो कि लड़ाई में जाते हैं तो वो अपना शील्ड जो जहाँ पे सीने पर रख के अपने आप को बचाते हैं, वो शील्ड जो थी, जो सोलोमन ने बड़े उससे बनाई थी, सोना इकट्ठा उसके फादर ने किया था। लेकिन यहाँ पे शीशक जब आता है तो जितने सोने चांदी की चीजें थी, महंगी महंगी आभूषण जो थे, जो मंदिर में रखे हुए थे, जो उसके महल में थे, वो सब के सब वो लूट के चला जाता है। हम देखते हैं when we are not faithful to God, God punishes us in a very mysterious way, and this is what happened to this man रहबाम। तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पे चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं, राजभवन की अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया और सोने की जो फरिया सुलेमान ने बनाई थी उनको भी भूल गया। मंदिर में हम देखते हैं कि सोने की चीजें होती हैं जो कि बहुत कॉस्टली होती है, और जो सोलोमन ने यहाँ पे बनाया, बहुत ही महंगे महंगे चीजें उसने मंदिर में लगा रखे थी, सोलोमन के टेम्पल में। और महल में भी वैसे ही चीजें लगा रखी थी, आभूषण जो थे सोने चांदी की चीजों से उसने सजा रखा था। मंदिर भी सोने चांदी से सजा हुआ था, और सोने की जो फरिया है वो भी उस सोने की जो थी। और हम देखते हैं कि ये अफ्रीका का राजा था, मिस्र का राजा था शीशक, जो आके ये परमेश्वर ने पॉसिबल कराया कि ये यहाँ पे इनके ऊपर चढ़ाई करे, ताकि ये परमेश्वर की ओर अपना मन फिराए, ये अपने गलतियों को समझे, और ये जो बुत परस्ती में चले गए वहां से ये लोग वापस आए। इसलिए परमेश्वर ने शीशक को अलाउ किया कि वो रहबाम पे जाके चढ़ाई करे, और मंदिर और महल में जितनी भी आभूषण वाली चीजें थी वो सब के सब ये मिस्र का राजा, जो अफ्रीका का राजा था, वो यरूशलेम से लेके चला जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके की चीजें हैं जो कि हमें भुगतनी पड़ती है। So the leaders of Israel and the king humbled themselves and said, "The Lord is righteous." अब यहाँ पे हम देखते हैं जो अगुवे थे, इसराइल के हाकिम और राजा दीन हो गए। सामान तो इनके मंदिर से चला गया, महल से भी चला गया। इन्होंने बहुत देर करी पछतावा करने के लिए, लेकिन इन्होंने पछतावा किया।
तब इसराइल के राजा हकीम और राजा दीन हो गए. They humbled themselves and they said God is righteous. परमेश्वर धार्मिक है, परमेश्वर ही सब कुछ है. जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा के वचन शमाया के पास पहुंचा कि वे दीन हो गए हैं. मैं उनको नष्ट ना करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा. मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर ना भड़केगी. उन दिनों में ऐसा होता था, God is promising, I will not totally destroy the city Jerusalem, and I will save them now, since they have humbled themselves. And he sends the message through Shemaiah the priest, and he brings the message to King Rehoboam. He says, you have humbled yourself, so I will not totally destroy you. I will try and save you, and I will not allow Shashak to destroy Jerusalem totally. यरूशलेम को जो है शशक पूरी तरीके से तबाह नहीं करेगा. पहले ये होता था कि जब एक राजा दूसरे राजे पे अटैक कर रहा है तो वो उस शहर को जला देता है. और यहाँ पे हम देखते हैं कि the king used to, if one king is attacking the other king and going into his kingdom, he would destroy everything in the kingdom, including the king himself. He will kill him. He will take away all the booties from the palace as well as from the temple, and then take away the ladies and all those, capture them and take them into his custody. But here, God has seen that how Rehoboam has humbled himself. So he says, I will not allow the king of Egypt to totally destroy Jerusalem. Whatever he has taken, but he is not going to destroy the city of Jerusalem, and also your palace, and also the temple. Whatever he has taken, all those good things that he has taken, that is now you have humbled him yourself, and God is giving them assurance that he is not going to totally destroy them. परमेश्वर उनको जो है ये सत्वाना दे रहा है कि वो उनको नहीं करेगा. हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि So King Rehoboam made bronze shields. अब जब सोने के फरियां चली गई हैं, उसने क्या करा, ब्रास की फरियां बनाई. ये लोगों से छुपाने के लिए उसने जो है लोगों को ये दिखाया, क्योंकि ब्रास जो है उसको चमकाना पड़ता है. You have to shine the brass, and then only it will be seen like gold. So this was another hypocrisy of King Rehoboam. He wanted to show the people that the gold shields are already there in the temple. King Shashak has not taken that. And therefore, only the people who made the bronze shields, they knew. And they were supposed to bring them out when king would go to temple and again come back to his palace. And he says, King Rehoboam made bronze shields to replace them and assigned these to the commanders of the guard on duty at the entrance to the royal palace. So we see here how this work is done, how he's making his guards to keep those shields, hide it from the people, that to let them know those gold shields are still in the temple and they are used in the same manner that it was used for King Solomon. राजा सोलोमन के जमाने में जैसे कि गार्ड्स वो शील्ड लेके खड़े होते थे पैलेस से लेके और टेम्पल तक, वो उसने उनको दिखाने के लिए कि असली गोल्ड है, लेकिन वो असली गोल्ड नहीं था. उसकी कीमत जो है बहुत कम हो जाती है. यहाँ पे हम देखते, तब रेहोबोआम राजा ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं और प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे. और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता, तब तब पहरुए आके उन्हें उठा ले चलते
और फिर पैरों की कोठरी में लौटा के रख देते थे. This was only used when king would come out and go to the temple. These people will bring those shields from the storeroom and then stand there, and once king is back to the palace, they will again go back and store these brass shields. And before taking them out, they had to shine them. इनको जो है वो इतनी भारी थी, सोने की जो शील्ड थी उनके मुकाबले में ये बहुत हल्की थी, और इसकी असलियत खाली गार्ड्स ही जानते थे. Only the guards knew who made those bronze shields. The public did not know, so he was hiding the secret from the public. And this is another thing that he does here. When we look at here, the lessons that we learned from this man, King Rehoboam. He was willing to listen to everyone except God, wholly devoted to self only. उसके अंदर सेल्फ, स्वार्थ कूट कूट के भरा हुआ था. वो परमेश्वर की बात को नहीं मानता था. परमेश्वर के ऊपर उसने अपना मन नहीं फिराया. परमेश्वर लोगों को जो है बुत परस्ती की ओर ले गया. अगर एक अगुआ ऐसा काम कर रहा है जो बुराई के रास्ते पे ले जा रहा है, तो वो सही अगुआ नहीं है. वो जो काम जो उसको दिया था लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए, लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए, लेकिन किंग रेहोबोम में और ये कुछ नहीं था. किंग रेहोबोम was totally devoted to himself. He did not devote himself to God, and he led people into idolatry. He led his kingdom into idolatry and pagan worship and led the people away from God. लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया. ये सबसे बड़ा गुनाह था उसका, इसलिए खुदा ने उसको पनिश किया. हम देखते हैं जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं, हमारे ऊपर परेशानियां आने शुरू हो जाती हैं. Once we go away from God, God brings us back and he gives us the trials so that we will be back to him. And this is a way of God helping us to go back to him. Even though we make so many mistakes, इतनी गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर हमें अपने सही रास्ते पे ले जाता है. God punished King Rehoboam by sending the king Shishak of Egypt, who took away all the wealth, even the golden shields. यहाँ पे देखते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि सोलोमन के जमाने की जो फरियां थी वो अभी भी हैं. शैशक उनको नहीं लेके गया. लोगों को धोखा कर रहा था. लोगों की आंखों में उसने धोखा किया. लोगों को ये जताया कि ये वही शील्ड है जो सोलोमन उसके पिता के सामने थी. और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से इसने अपने राज्य को दो भागों में बांट दिया. और हम देखते हैं यरोबाम जो था वो भी बुत परस्ती में ले गया लोगों को. तो इजराइल और जूडा दोनों के जो अगुवे थे, जेरोबाम और रेहोबाम, दोनों ने लोगों को बुत परस्ती में डाला, परमेश्वर से दूर कर दिया. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? He humbled himself and God promised that he will not totally destroy them. जब हम अपने आप को हलीम करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं होने दूंगा. यहाँ पे उसने परमेश्वर के लिए उसने अपने मन को परमेश्वर की ओर लिया. He humbled himself, turned to God, and once we go back to God, God is forgetting all our mistakes that we commit. He takes us back into his arms because we are the chosen people of God. जब परमेश्वर ने हमें चुना है, अगुओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो हिपोक्रेसी या कपटीपन ना करें. अगुओं के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर कलीसिया का जो मेंबर है उसको एक ही नजर से देखें. We need to look at our church members equally. A pastor or the leaders of the church has to study, has to see that they are with God. They are the true followers of God. If we as leaders are the true followers of God, then only we can lead the people to God. अगर हम सच्चे अगुवे हैं, परमेश्वर की गवाही अगर हम दे रहे हैं और परमेश्वर के वचन से अगर हम जो
वचन को शेयर कर रहे हैं, तभी हम सच्चे अगुवे कहलाएंगे जाएंगे। हमारे मन में कोई छल और कपट नहीं होना चाहिए, जैसे कि रहबाम के मन में था। We should not have hypocrisy in our heart like King Rehoboam. He was hiding things from the public. He tried to show that he was very powerful. He was very intelligent. He was a wise person like his father by taking the advice of the elders. But when he comes to his own group, the young people, he listens to them. He doesn't listen to the older people, and he feels their advice is useless. What his friends are telling, what he wants to do, he wanted to do himself, his own will. अपनी इच्छा के मुताबिक वो जब चला, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर कहता अपनी समझ पे ध्यान मत दो, लीन नॉट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ पे ध्यान मत दो। जब हम अपनी समझ पे ध्यान नहीं देंगे और परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, तो हमारे साथ परमेश्वर खड़ा है। चाहे हमारे ऊपर कितनी भी परेशानियां आए, हम परमेश्वर के अगुवे वो ही हो सकते हैं जो परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर की भेड़ों को सही रास्ता दिखाए। When the shepherds or the leaders of the church show the right path, believe the right things from the Bible, and then only, not to be hypocrite, saying something in front of the members and again doing something else, that creates a rift between the members and the leaders of the church. अगर हम अपने मन में छल कपट रखेंगे, तो हमारे और कलीसिया के जो मेंबर्स हैं, उनके बीच में एक खाई पैदा हो जाएगी जिसको हम पाट नहीं सकेंगे। So therefore, the leaders have to be in line with God. They have to keep on believing God's words, keep on sharing the right message to their members, keep on helping the members, keep on encouraging the members. रहबाम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने जो है उनको जो है कभी एनकरेज नहीं किया, कभी उनका उत्साह नहीं बढ़ाया। उसने जो है वो जो हार्श क्रूर तरीके का जो व्यवहार था वो लोगों के साथ किया, इसलिए लोग उससे दूर हो गए। और इसीलिए जो है जब लोग दूर हुए तो राज्य दो हिस्सों में बट गया। हमें कलीसिया में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो छल कपट से रहते हैं। We don't need people who are hypocrites. We need leaders who say right thing is right, and wrong, if it is wrong, it has to be wrong. If it is right, it has to be right. अगर सही को हम सही बोले और गलत को गलत बोलेंगे, तभी हम सच्चे अगुवे बन सकते हैं, परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर से मैं हाजिर होंगी अपने नए मैसेज के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आइए ये वचन को आप शेयर कीजिए, क्योंकि हमें सच्चे अगुवों की जरूरत है। गॉड ब्लेस यू।